Welcome to MathGrads. In this video, I will be discussing about quotient normed linear space. Our main target in this video is to prove that if M is a closed subspace of a complete normed linear space N, then the quotient space N by M is also complete normed linear space with respect to the norm defined as for all x plus m belonging to N by M, norm of x plus m is infimum of norm of the elements of N, where the elements are such that x plus m type M belongs to M. We will prove this theorem in parts. So first of all, let us discuss what is quotient linear space. We already know let N be a norm linear space. क्योंकि हर नॉर्म लीनियर स्पेस एक वेक्टर स्पेस होता है over some field f, then if M is a subset of N, any subset, such that M over the same field f forms a vector space under the operations of V, then M is called a subspace of N. अब हम N by M एक सेट डिफाइन करते हैं. नोटेशन N by M है. दिस इज N by M. We can't write it like N. This slant can't be like this because this means difference of two sets, and this means N by M, which is the notation of this set जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं x plus m टाइप से such that x belongs to N. These elements are termed as coset of M in N. Coset of M. So now if we define two operations, vector addition and scalar multiplication as follow: for all x plus m, y plus m belonging to N by M, x plus m plus y plus m will be defined as x plus y plus m. And for alpha belonging to field, for all x plus m belong to the set N by M, alpha x plus m is alpha x plus m. We can prove that this set with respect to these operations form all the satisfy all the axioms of a vector space. Hence, N by M over the field F will become a vector space, and that vector space is termed as quotient space. अब N by M एक quotient space बन गया, quotient linear space या quotient vector space. लेकिन अब इसको हमें quotient normed linear space बनाना है, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं quotient normed linear space के बारे में. सो हमें इस वेक्टर स्पेस के ऊपर एक नॉर्म डिफाइन करनी पड़ेगी, वो नॉर्म हमें ढूंढनी पड़ेगी. हमें पता है N by M is formed with the help of vector space N, but N by M is not a subset of N. सो N की एग्जैक्ट नॉर्म उठाकर हम इस पे यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इसके एलिमेंट्स कोसेट्स है, ना कि एलिमेंट्स ऑफ N. सो हमें इसके लिए अलग से एक नॉर्म डिफाइन करेंगे और वो नॉर्म हम N की नॉर्म्स की हेल्प से डिफाइन करेंगे. अब हम पहले सेमी नॉर्म देख लेते हैं. हमने नॉर्म लीनियर स्पेस के बारे में पढ़ा है. नॉर्म लीनियर स्पेस, कोई भी वेक्टर स्पेस नॉर्म लीनियर स्पेस तब होता है जब वो कुछ चार एक्सियम्स सेटिस्फाई करता है, और उनमें से एक एक्सियम होती है कि नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज इक्वल टू ज़ीरो. लेकिन सेमी नॉर्म क्या होता है, उसमें ये जो प्रॉपर्टी होती है ये थोड़ी वीक होती है. दैट मीन ये इफ़ एंड ओनली इफ़ की बजाय जस्ट वन वे होती है ये प्रॉपर्टी. इसका मतलब अगर x ज़ीरो होता है देन डेफिनेटली नॉर्म ऑफ x विल बी ज़ीरो. लेकिन अगर नॉर्म ऑफ सम वेक्टर इज़ ज़ीरो तब हम ये डेफिनेटली नहीं कह सकते कि x विल बी ज़ीरो. और ऐसी वीक प्रॉपर्टी वाली नॉर्म को हम सेमी नॉर्म बोलते हैं. सो सेमी नॉर्म के अंदर नॉर्म ऑफ अ वेक्टर कैन बी ज़ीरो इवन फॉर सम नॉन ज़ीरो v. अब हम एक प्रोपोजिशन प्रूव करेंगे जो हमें इस चीज़ की गारंटी देगी कि हम इस कोशेंट स्पेस के ऊपर एक सेमी नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं. प्रीपोजिशन स्टेट्स दैट लेट n and norm on n
this ordered pair be a non-linear space and let M be a linear subspace of n. Define norm on n by m to 0 infinity as follow. For all x plus m belonging to n by m, x plus m की norm is defined as infimum of norm of x plus m such that m belongs to m, and ये norm n की norm से हम define करते हैं. Then norm, this norm we have defined above, this will be a semi norm on n by m. अब हम ये देखते हैं कि इन कोसेट्स के अंदर एलिमेंट्स कैसे होंगे. हमें पता है x प्लस एम जो कोसेट्स है जो कि हम n बाई एम से लेते हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स डिफाइन होते हैं x प्लस एम टाइप से सच दैट m बिलोंग्स टू कैपिटल M. नाउ इट इज़ क्लियरली ऑब्जर्व दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ n, m स्मॉल m ये कैपिटल M से है, बट m इज अ सबसेट ऑफ n, hence this is also an element of n. So sum of x plus m will also be an element of n because n is a vector space so closed with respect to addition. Since n is a non-linear space given, hence every element has a norm defined. So norm of x plus m for all m belong to m, x belong to n ये defined है एंड ये ग्रेटर इक्वल ज़ीरो रहेगी. दैट मीन ये सेट के अंदर, ये जो एक सेट है, जब हम x को फिक्स करते हैं, m को m में से हम वेरी करते रहते हैं, हम देखते हैं कि इस सेट के अंदर नंबर्स आएंगे. ये जो नॉन फाइनली रियल नंबर हमें एक प्रोवाइड करती है. सो यहाँ पर रियल नंबर्स का एक सेट बन जाएगा जो कि बाउंडेड बिलो है. अब अगर कोई सेट बाउंडेड बिलो होता है उसका इन्फिमम एग्जिस्ट करता है. दैट मीन्स ये जो इन्फिमम हमने डिफाइन किया है ये वेल डिफाइंड है, मतलब ये इन्फिमम एग्जिस्ट करेगा. सो ये नॉर्म हमने इन्फिमम से डिफाइन की थी तो ये नॉर्म भी वेल डिफाइंड है, इसीलिए हमने ये तो प्रूव कर दिया कि ये नॉर्म वेल डिफाइंड है. अब हम उसको सेमी नॉर्म बनाने के लिए बाकी प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करवाएंगे. हमें पता है सेमी नॉर्म के अंदर भी नॉर्म ऑफ एवरी एलिमेंट वो ग्रेटर इक्वल ज़ीरो होना चाहिए. सो हमारा सेट जिसको हम इस नॉर्म के रिस्पेक्ट में सेमी नॉर्म बनाना चाहते हैं, इसके अंदर एलिमेंट है x प्लस एम. इसकी नॉर्म हमने ऐसे डिफाइन की है. यहाँ पर जो ये एलिमेंट्स है सारे ग्रेटर इक्वल ज़ीरो है. सो इनका जो इन्फिमम होगा वो भी ग्रेटर इक्वल ज़ीरो होएगा, क्योंकि ये सारे नंबर्स पॉजिटिव नॉन नेगेटिव हैं एंड नॉन नेगेटिव नंबर्स का इन्फिमम हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, इसीलिए ये भी नॉन नेगेटिव रहेगा. इसीलिए ये जो नॉर्म है ग्रेटर इक्वल ज़ीरो, नॉन नेगेटिविटी इज़ प्रूव्ड. नाउ होमोजेनिटी प्रॉपर्टी, इसके अंदर हमने स्केलर लिया अल्फ़ा, एक्स प्लस एम कोई भी उठा लिए आर्बिट्री, या फिर सारे उठा के हम देखें तो आर्बिट्री उठा लेते हैं एन बाई एम से. जब अल्फ़ा नॉन ज़ीरो है देन नॉर्म ऑफ अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस एम इज़ अल्फ़ा एक्स प्लस एम, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी से, विच इज़ डिफाइंड एज इन्फिमम ऑफ दिस. यहाँ से हमने अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर एक्स प्लस एम बाई अल्फ़ा बचेगा. वी नो अल्फ़ा एक्स की नॉर्म इज़ मॉड अल्फ़ा नॉर्म ऑफ एक्स. क्योंकि n एक नॉन लीनियर स्पेस है तो ये नॉर्म के अंदर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है. सो हमारा मॉड अल्फ़ा बाहर आ जाएगा. अब इस चीज़ को हम, ये पॉजिटिव नंबर है ये बाहर आ जाएगा इन्फिमम से विदाउट एनी इनइक्वालिटी चेंज. सो मॉड ऑफ अल्फ़ा इन्फिमम ऑफ दिस. अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ से कि जो हमारा ये सेट बना है S such that m by alpha, m belongs to m and alpha belongs to field. हम क्या यहाँ से बोल सकते हैं कि हमने जब m को अल्फ़ा से डिवाइड किया अभी भी ये जो नॉर्म है ये सारे m के एलिमेंट्स को कवर कर लेगी? ये हम बोल सकते हैं क्योंकि हम इस सेट को m के इक्वल प्रूव कर सकते हैं. सो ये जो यहाँ पर हम अगर m बाई अल्फ़ा अगर हमारी चीज़ आ जाती है तभी भी
ये m बाई अल्फ़ा सभी m के एलिमेंट्स को यहाँ पर रन करवा सकता है। तो ये इक्विवेलेंट है इस चीज़ के, और ये हमने डिफाइन किया था नॉर्म, हैंस मोड ऑफ अल्फ़ा नॉर्म ऑफ x प्लस m। ये था अल्फ़ा जब नॉन ज़ीरो हो, लेकिन अगर अल्फ़ा ज़ीरो हो जाए तो अल्फ़ा x प्लस एम विल बी ज़ीरो प्लस एम, बिकॉज अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस एम होगा और अल्फ़ा हमारा ज़ीरो है। सो इट विल बी इन्फिमम ऑफ ज़ीरो प्लस एम, एम बिलोंग्स टू एम। यहाँ पर ये ज़ीरो आएगा क्योंकि एम एक सबस्पेस है तो ज़ीरो इसके अंदर बिलोंग करेगा। सो जब इन पर्टिकुलर, क्योंकि यहाँ पर हमें सारे एम के एलिमेंट्स डाल के देखते रहेंगे और जो इन्फिमम वैल्यू आएगी इन सबसेट इन एलिमेंट्स की वो हमारी नॉर्म होती है। तो इन पर्टिकुलर जब m इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो विल बी ज़ीरो, ज़ीरो की नॉर्म होती है ज़ीरो। सो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल ज़ीरो, और अगर वो ज़ीरो ही आ जाए तो ऑब्वियसली इससे छोटी तो कोई चीज़ जाएगी ही नहीं, इसलिए इन्फिमम ऑफ दिस विल बी ज़ीरो। और इसको हम लिख सकते हैं मोड ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस एम, बिकॉज यहाँ पे मोड ऑफ अल्फ़ा इज ज़ीरो। सो homogeneity property is proved for alpha non-zero और alpha zero. Now सब additivity property या फिर जिसको triangle inequality बोलते हैं, हमने x प्लस एम वाई प्लस एम n बाई एम से ले लिए कोई भी एलिमेंट, हमें पता है ये वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी से ऐसे डिफाइन होता है और नॉर्म इसकी हमने ऐसे डिफाइन की हुई है। नाउ दिस इज, इस m को हमने m1 प्लस m2 में स्प्लिट कर लिया, जहाँ पर m1 m से है m2 m से है। ये कैसे? कोई भी m1 हमने m से लिया तो m को हम m1 प्लस m माइनस m1 लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको हम m2 बोल देंगे। सो किसी भी m को हम किसी भी m1 और m2 के एक m1 को अगर हम फिक्स करें तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग एक कॉम्प्लीमेंट m2 जरूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट देयर सम विल बी m। हैंस यहाँ से x प्लस एम वन वाई प्लस m2, अब हमें पता है इस नॉर्म के अंदर ट्राइंगल इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करती है। सो दिस इज लेस इक्वल दिस नॉर्म प्लस दिस नॉर्म। हमें पता है नॉर्म ऑफ a प्लस बी इज लेस इक्वल नॉर्म ऑफ a प्लस नॉर्म ऑफ b। सो जब हम इन्फिमम लेंगे दोनों तरफ तो इन्फिमम ऑफ दिस विल बी लेस इक्वल इन्फिमम ऑफ दिस, इसीलिए यहाँ से हम यहाँ पर आते हैं, इनइक्वालिटी आ जाती है लेस इक्वल सच दैट m1 m2 बिलोंग्स टू m। दिस इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ दिस प्लस इन्फिमम ऑफ दिस, बिकॉज यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव सेट्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स के सेट हैं, नॉन नेगेटिव नंबर्स के सेट है इनफैक्ट। सो इनका इन्फिमम इक्वल टू के साथ ऐसे ऐड हो जाएगा, विच इज़ फर्दर इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस एम वाई प्लस एम। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमने m को m1 प्लस m2 में स्प्लिट किया था। दोबारा से वही क्वेश्चन कि क्या ये जो m1 है ये m के सब एलिमेंट्स को यहाँ पर रन करवा सकता है और यहाँ पर ये m2 भी, मतलब ये ना हो जाए कि कुछ एलिमेंट्स बच जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इस m को हम हर m1 ऑफ m, कोई भी हम सारे के सारे m1 ऑफ m हम ले लें उसके लिए कोई ना कोई m2 भी मिलेगा m से, इसीलिए यहाँ पर ये m1 जो है हर m1 को ले सकते हैं हम, ऐसे ही m2 भी हम हर m2 को ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये सभी m1 m के सब एलिमेंट को कवर कर लेगा। ऐसे ही यहाँ पर तो ये इक्विवेलेंट है जो हमने स्टैंडर्ड हमने जैसे डिफाइन की थी नॉर्म को, इसीलिए ये नॉर्म ऑफ दिस एंड नॉर्म ऑफ दिस आ गया। सो यहाँ से ओवरऑल इनइक्वालिटी बन गई दिस इज लेस इक्वल दिस, सो ट्राइंगल इनइक्वालिटी इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। अब हम लास्ट प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे विच इज सपोज टू बी लाइक दिस नॉर्म इज इक्वल टू ज़ीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज ज़ीरो इन केस ऑफ नॉर्म। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि किस साइड तक या किस वे तक ये प्रूव हो सकती है। अगर हम x प्लस एम एन बाई एम से कोई भी एलिमेंट लें सच दैट x प्लस एम इज ए ज़ीरो एलिमेंट इन n बाई एम, हमें पता है कोशेंट स्पेस के अंदर जो ज़ीरो एलिमेंट होता है वो ज़ीरो प्लस एम फॉर्म का होता है, दैट इज़
the set or the subspace M itself. So इसकी norm will be equal to this norm will be 0, जैसा कि हमने अल्फा इज इक्वल टू 0 के केस में पीछे किया था. सो हमने देखा कि अगर एलिमेंट हमारा 0 एलिमेंट है इस सेट का, तब तो उसकी नॉर्म 0 है. लेकिन जिस तरीके की हमें कंडीशंस प्रोवाइड की है, हमें एम जस्ट एक लीनियर सबस्पेस दिया हुआ है, वेक्टर स्पेस दिया है. सो एट दिस पॉइंट वी कांट से इफ norm of x is 0 would imply x plus m will be 0 plus m. दैट इज़ अगर किसी वेक्टर का नॉर्म 0 हो तो अभी हम नहीं ऐसा बता सकते कि वो वेक्टर खुद में एक 0 एलिमेंट ही होना चाहिए. लेकिन ये चीज़ ट्रू है अगर m क्लोज्ड हम ले लें. सो दिस इज़ एडिशनल प्रूफ. Here, if we consider n by m a quotient linear space, जो कि हमने प्रूव किया है कि एक सेमी नॉर्म लीनियर स्पेस है. लेकिन अगर इसमें हम m पे एक रेस्ट्रिक्शन लगा दें कि वो क्लोज्ड होना ज़रूरी है, उस टाइम पर जो हमने नॉर्म डिफाइन की है उसके रिस्पेक्ट में n by m एक नॉर्म्ड लीनियर स्पेस बन जाएगा. दैट मीन ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी. सो हमने m को क्लोज ले लिया. लेट m बी क्लोज्ड. सो वी जस्ट नीड टू प्रूव दैट वेन एवर नॉर्म ऑफ x प्लस m इज 0, दैट वुड इम्प्लाई x प्लस m विल बी 0 एलिमेंट ऑफ द वेक्टर स्पेस n by m. Let norm of some vector is 0. This is a vector in n by m. दिस इम्प्लाई इन्फीमम ऑफ दिस, क्योंकि इसकी नॉर्म डिफाइन ऐसे है, ये 0 होगा. अब हम क्या चीज़ देखते हैं कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, इस सेट के अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं, इनकी नॉर्म 0 तब होती है इफ़ एंड ओनली इफ x प्लस एम इज़ 0, क्योंकि n इज़ ए नॉर्म लीनियर स्पेस. तो ये 0 होगा, इसका मतलब m इज़ माइनस एक्स. यहाँ से हमें एक आइडिया मिलता है कि ये फर्स्ट जो कंडीशन अगर ट्रू है, अगर ये चीज़ हो रही है, इसका मतलब ये सेट्स 0 को टेंड करेंगे. अगर 0 एग्जैक्ट 0 इस सेट के अंदर ना भी आए, लेकिन तब भी 0 को टेंड करने वाली इस सेट के अंदर नंबर्स होने चाहिए, एक सीक्वेंस होनी चाहिए जो 0 को टेंड करे. क्योंकि अगर एक सीक्वेंस 0 को टेंड करेगी तब उसका इन्फीमम 0 हो जाएगा. So, for first to occur, there must exist a sequence mn in m such that mn tends to minus x. So, we conclude that for first to occur, mn एक sequence m में exist करेगी जो कि m minus x को tend करेगी. हमें पता है m closed है. क्लोज सेट वो होते हैं जिसके जो अपने हर लिमिट पॉइंट को कंटेन करते हैं. अब माइनस एक्स अगर एक लिमिट पॉइंट है m का, तो माइनस एक्स एम में जाना ज़रूरी है. माइनस एक्स एम में जाएगा तो x भी m में जाएगा, क्योंकि m एक सब स्पेस है. सो इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट इन दैट सब स्पेस. सो यहाँ से x जब m में जाता है, देन वी हैव x प्लस एम इज़ 0 प्लस एम. x m में तभी बिलोंग करेगा जब x प्लस एम 0 प्लस एम के इक्वल होगा. ये था हमारा 0 एलिमेंट ऑफ n बाई m. सो हमने प्रूव कर दिया कि जब भी हम किसी का नॉर्म 0 लेके चलेंगे और वहाँ पर m अगर क्लोज्ड है तो वो एलिमेंट 0 होगा. सो बाय दिस वी कंक्लूड दैट द नॉर्म वी डिफाइंड ऑन n बाई m is a normed linear space in case m is closed.